Hello everyone, I hope you are doing well. In this video, we cover what is the structure of our programming, what are their various parts, and how we do programming in this. In last video, we cover insertion and extraction various operators, and see about dynamic and reference variables. Okay, so also see declaration of variables. So in this video we cover how to code and how to do coding in C++. First we see what is the general structure and how we code that C++. Okay, so पहले तो हम एक प्रोग्राम करेंगे इसमें, and then we move to advanced level, that is object oriented programming. First we see normal programming with the help of C++. Okay, so let's start. Before starting on this programming, I explain uh, some structure, explain you structure about programming. Okay, see, this is our programming. Program. Okay, so here is certain blocks are present. That first block is header file. Here we include header. This is the header part. And again, after this, here is various functions and classes are present. Prototype. Here we declare some what are the functions we use, or what are the classes we use in code. Okay, and here is our main program. जब हम कोड करेंगे तब मैं और एक बार समझाऊंगा आपको. Here is our main function which run the main code of program. Okay, ये हमारा मेन फंक्शन रहेगा जिसमें हम प्रोग्राम को रन करेगा. हम बाहर कितना भी कुछ लिख ले या कुछ भी डेफिनेशन लिख ले, ऑब्जेक्ट्स बना ले, क्लासेस बना ले, बट जब तक हम उसे मेन फंक्शन में उसे यूज नहीं करेंगे या मेन फंक्शन में उसे रन नहीं करेंगे, तब तक कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होगा. राइट, सो हियर इज आवर मेन प्रोग्राम. Here also some three parts is there. What are they? We see here we initialize
initialize or declare variables. Okay, after declaring this, we have some logic of program. Here is a main our main logic of program. Here is 1 minute. Logic of program. देखिए, कोई भी प्रोग्राम करने के लिए हमें एक लॉजिक लगाना पड़ता है, राइट? अगर मेरा सपोज मान लो कि कोई एडिशन का प्रोग्राम है, सो I what I will do, I get two variables which take one variable one value and second is accept another value, and then it print or it give me result. But what are it combine whenever I do sum of these two numbers, uh, I have to add these two numbers, okay, and then it get me a result, combined result, whatever it be. So that what are वो क्या हो गया, वो लॉजिक हो गया, हमारे प्रोग्राम का लॉजिक हो गया, उसका फ्लो कैसा है, उसको हमें उसमें क्या करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई इट गिव मी अ प्रॉपर आउटपुट. So that is the logic of the program. Okay. Next one is, and here is our end of the program, end part of program. End part of program. Okay, so the in this type it will be divided into blocks, so you have understand more properly. So okay, let's start with program. सबसे पहले हम एक प्रोग्राम करेंगे. क्लियर फर्स्ट. ओके, इसको क्लियर नहीं करते, राइट? न्यू सेव. ओके, सो हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जो हमें डिस्प्ले करे हेलो वर्ल्ड, राइट? हेलो हेलो वर्ल्ड. ठीक है. सो जब भी हम इसको डिस्प्ले करेंगे, सो इट जब भी हम इसका आउटपुट जनरेट करेंगे, इट शो मी हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम. ओके, सो हम कंपाइलर की तरफ चलते हैं हमारे. व्हाट आर दैट? टर्बो सी प्लस प्लस. सो just as minimize the slides, that is the turbo C++ is compiler is present. Okay, this is interface of our turbo C++, and here is some menus are there, and let's start with our new program. So we have to click on the file menu and just click on that. So here one program is present. So पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, फिर हम इसको
रन करके देखेंगे, राइट। सो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था? हेडर फाइल, राइट। एक प्रॉब्लम है यार, एक मिनट, एक बार स्टार्ट। सो हमें सबसे पहले क्या करना है? हेडर फाइल को इंक्लूड करना है, ओके। सो here I put header file, that is hash include iostream stream.h। that, अब देखिए हम इसे कैसे प्रीडिसेसर, ये क्या करता है, जो भी हमारे लाइब्रेरी है, अभी कैसा है कि अभी ये जो कंपाइलर है इसका एक लाइब्रेरी है, राइट, वेयर consist various keywords definitions and various functions and various header files, okay, which helps to which give provision to use various keywords and like float, all these data types and all these things, okay। so जो हमें help करती है, ये जो फाइल है, अगर ये iostream.h है तो इसमें डेफिनेशंस प्रेजेंट है, राइट। हर जैसे कि अगर मैं फ्लोट यूज कर रहा हूँ, जो भी इसके प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं, जैसे हमने कीवर्ड्स के बारे में सुना था, राइट, हमने कीवर्ड्स के बारे में लास्ट स्लाइड्स में पढ़ा था, लास्ट वीडियोस में पढ़ा था। सो वहाँ पे उनकी जो डेफिनेशन है वो इस iostream.h में प्रेजेंट है। सो वेन एवर आई यूज हियर दैट कीवर्ड, it direct to that iostream.h file and see their definitions, okay। So uh, and our next file is next include header file is include conio.h, okay। so that is another header file which we help in our program। so अभी एक हमें क्या करना है, हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। सो हमें क्या करना पड़ेगा, मेन प्रोग्राम मेन फंक्शन लिखना पड़ेगा। सो void main टू करली ब्रेसेस, राइट। अब जो भी फंक्शन लिखना है हमें यहाँ पे लिखना है, राइट। अब इसमें जो void है, ये void नल रहता है, नल यानी उसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, राइट। सो इट गिव्स नल, ओके। नल मतलब कुछ भी नहीं, राइट, it's not even zero, okay। so we have two function, that is clr scr. This function helps to clear our screen. First it clear the screen and then it gives show our output. So cout hello world, right, semicolon, and get और ये जो जब भी हम कोडिंग करते हैं तो हमें ध्यान रखना है ये केस सेंसिटिव है, राइट। सो समटाइम्स वेन एवर यू यूज मेक श्योर योर फंक्शंस में बी in small letter, okay। so
this is end part, clr scr cout hello world, and get ch का मतलब होता है get character. It helps to hold character on our screen. Okay, so ये एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है जो हमारे कैरेक्टर को होल्ड करने का काम करता है, गेट सी एच. ओके, so this function is used to clear the screen, and this function is used to uh, hold the character. Okay, so just इस हमें इसे सबसे पहले सेव कर देना है, सेव एज, सेव एज what first program dot cpp, that is the extension of this C++ file. Okay, then we run the program. That is simple use control F9, or simply go to the menu bar and click on run, and hit the run, click on run, so it give me result. But before 1 minute, 1 minute. Before doing before run the program, you have to compile that program. Okay, so मैंने सबसे पहले रन ही कर दिया, so sorry, उसमें हमें सबसे पहले कंपाइल करना होगा, राइट. हमारे कंपाइलर को बताना होगा कि हमने ये प्रोग्राम कंपाइल कर लिया, राइट. सो कंपाइलर कंपाइल होल प्रोग्राम, राइट. अभी इसमें देखिए हमने तो सिंपल 3 लाइन लिखे हैं, राइट, बट ये दिखा रहा है कि लाइन्स कंपाइल्ड 1030 एंड फाइल्स आर 1030. वाई? बिकॉज हमने ये 2 फंक्शंस यूज किए हैं, राइट, and some header files are included here, so it will also, जो भी इसके लाइन ऑफ कोड रहेंगे वो रन होंगे, राइट. सो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है. 1 मिनट. सबसे पहले जब भी हम प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, राइट, सबसे पहले जब भी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले उसने कौन सा फंक्शन ढूंढा है? मेन फंक्शन, राइट. उसके बाद देन इट गो टू द फंक्शन क्लियर clr scr, which is whose definition is present in this compiler. So it goes there and get all the code of the clr scr. Okay, इसका पूरा कोड उसने रन किया, देन सॉरी कंपाइल किया, देन it print the it print our output. Okay, what are they? That is the hello world. Okay, then it goes to line of code for which iostream.h. see, ये दिख रहा है. अभी देखिए ये इस फाइल में कौन कौन से लाइन ऑफ कोड्स है. देखिए F7, देखिए हो गया, राइट. अब वो गेट सी एच पे आएगा, राइट, एंड अगेन हियर इट एग्जीक्यूट प्रोग्राम, सो इट होल्ड द प्रोग्राम. अब जो iostream.h में गेट सी एच फंक्शन नाम का फंक्शन है जो हमें कैरेक्टर को होल्ड करने के लिए हेल्प करता है. सो दैट प्रिंट द आउटपुट. ओके, सो दिस इज आवर आउटपुट. So again we do some another program. Okay, so let's start with new program, new. Hash include
iostring.h again hash include conio.h। जनरली यही दो हम यूज़ करते हैं। बाकी भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम टाइमली जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे वैसे हम यूज़ करते चलेंगे, राइट। नाउ आवर न्यू प्रोग्राम, अभी हमारा नया प्रोग्राम क्या रहेगा, अब हम क्या करेंगे कि दो वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, दो वेरिएबल्स डालेंगे, दैट इज ए, जिसमें हम वैल्यू एक कोई भी वैल्यू इंसर्ट करेंगे, राइट, या फिर हम प्री डिफाइंडली उसको वैल्यू को डाल देंगे। देन एक्सेप्ट बी, इट हैव आल्सो सम वैल्यू एंड one variable is there which store the result of a plus b, राइट। अभी हमें क्या करना है कि सिंपली इसका एक एडिशन करना है a प्लस बी का, और उसे स्टोर करना है सी, एक c नाम के वेरिएबल में, राइट। सो अब चलो देखते हैं क्या करना है। सो सबसे पहले हमें a की वैल्यू इनिशियलाइज करनी है और b की वैल्यू इनिशियलाइज करनी है। सो लेट्स सी, छोटी स्क्रीन दिखा रहा है यार, 1 minute, हाँ ओके। सो हियर वी पुट न्यू फाइल, that is cout, cout result is देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सी, राइट। हमें क्या कौन सा रिजल्ट डिस्प्ले करना है, सी का। सो हम जब भी हमें कोई भी डेटा डिस्प्ले करना है हमें सी आउट में ही डिस्प्ले करना है, जो भी रिजल्ट है, जो भी आउटपुट है उसका रिजल्ट में इस पे ही डिस्प्ले करना है, राइट। एंड लास्ट फंक्शन इज गेट, 1 minute, गेट ch, राइट। सो इसे पहले सेव कर देना है, सेव, ओके, हियर हमें बीन में सेव करना पड़ता है, राइट। सो आई टोल्ड हिम सी एडिशन सम करके सम डॉट cpp, ओके, ठीक है, हमारा फाइल सेव हो गया, राइट। अभी हमें इसे कंपाइल करना है, सिंपली यूज अल्टर F9, ओके। अब देखिए प्रोग्राम कैसे रन होगा। सो मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, रन, रिजल्ट इज 49, ये हमारा आउटपुट हो गया। अब ये रन कैसे हुआ है देखते हैं। सो सबसे पहले जब भी उसने रन किया, जब भी रन करते टाइम में सबसे पहले उसने चेक किया मेन फंक्शन। सबसे पहले ध्यान रखिए, कभी भी अगर प्रोग्राम रन होता है तो सबसे पहले चेक करेगा मेन फंक्शन, राइट। मेन फंक्शन को ही पहले चेक करेगा, मेन में ही आएगा वो सबसे पहले। मेन के अंदर ही जो भी कोडिंग करनी है हमें, जो भी ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करने हैं, जो भी फंक्शंस डालने हैं, वो सभी हमें मेन में ही डालने हैं, राइट, ठीक है।
So our next line is CLR SCR, जो हमारा प्रिंट को स्क्रीन को क्लियर करने का काम करेगा, दैट इज द फंक्शन. एंड नेक्स्ट वन इज ए की वैल्यू उसने स्टोर की है, ए इज इक्वल टू 50. मतलब अभी यहाँ पे हुआ क्या है, एक्चुअली इसने मेमोरी में वो वैल्यू अलोकेट कर दी है, राइट. जो भी हमारी मेमोरी रहेगी उसमें एक वैल्यू अलोकेट करेगा ये, क्योंकि उसको स्टोर करना पड़ेगा ना, उसको स्टोर करना पड़ेगा, बी को स्टोर करना पड़ेगा, उसके बाद सी में उन दोनों का कैलकुलेशन हम पुट करेंगे, राइट. सो ए और बी में हमने वैल्यू स्टोर की है. सो हमारा जो टाइप है वो डेटा टाइप कौन सा है, इंटीजर डेटा टाइप है, राइट. Then again it takes b is equal to 34 and initialize memory for c also. Okay, now it's jump onto our logic, that is c is equal to a plus b, 15 plus 34, that is the 49. Okay, so now it prints our result. Okay, our result is c is equal to 49. अब यहाँ पे वो सी आउट का देखिए, सी आउट का इनलाइन फंक्शन को चेक करेगा. यहाँ पे उसने चेक किया, राइट. रिटर्न दिस, then it see operator also. Okay, and now this last function which hold the character on our screen, that is get ch, and it show me result. Okay, so हमें इस तरह से कोड करना होता है, और जब भी हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे यहाँ पे लिखना है, राइट. अब मैं नेक्स्ट प्रोग्रामिंग को नेक्स्ट इसमें हम और इसको थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे, कैसे यूजर से हमें कैसे इनपुट लेने हैं, and then how can we use the various controls, uh, various controls in C++, control structures in C++. What is the if then what are while statement, what is if else, do while, all of these things we see in next lecture. So today we stop here, student. Stay safe. Goodbye.